سیرت کو جاننے کے لیے ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے پوری، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے وہ کیسے رول ماڈل تھے، ایک بہترین رول ماڈل، جن کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی کو ایسی اسلام کے ایسے انسان کی طرح گزار سکتے ہیں جو کہ واقعی دوسروں کے لیے مثال ہو۔ اور یہاں 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ کس کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو، یعنی آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ سے بھی ڈرتا ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اور جب اللہ کی مدد آ گئی، ہوا یوں کہ 1 مہینے تک محاصرہ کرنے کے بعد، مطلب گھیرا ڈالنے کے بعد سے کوئی دشمنوں کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ مدینہ پر اٹیک کرتے۔ تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے غیبی مدد بھیجی، اور سخت سردی کا زمانہ تھا اور بہت تیز آندھی چلی، اور ان کے جو تمبو تھے، جو ٹینٹ تھے، وہ اکھڑ گئے، اور ان کے جو کھانے پکانے کے جو سامان تھے اور جو کچھ بھی تھا سب بالکل بکھر گیا، اور وہ بھاگ نکلے۔ اور ان کا ساتھ دینے والے بھی جو قریش مکہ تھے، وہ لوگ بھی دیکھے کہ اب تو یہ یہودی جو ہیں بھاگ گئے، تو وہ لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اس چیز کو دیکھ کے جو مومن تھے ان لوگوں کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تو ایسے لوگوں کا جو ایمان لانے والے تھے ان لوگ کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ اللہ بے شک حق والوں کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے لوگ، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی سزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ابھی یہ بیک گراؤنڈ میں وہی جنگ کے ہی منظر چل رہے ہیں۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کے جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے جو دشمن آئے تھے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑا قوت والا اور عزیز ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ وروں کا ساتھ دیا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ احزاب جب ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے طرف پلٹ آئے، جنگ کے میدان کی طرف سے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر ملی کہ آپ جو ہیں بنو قریظہ، ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کی طرف آپ کوچ کریں اور ظہر سے پہلے ان لوگوں کا محاصرہ کریں۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تھے تو وہاں یہودی رہتے تھے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریٹی سائن کی کہ جب کبھی مسلمانوں پر خطرہ آئے گا تو جو یہودی قبائل ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور مسلمان جب یہودیوں پر کوئی دشمن کا خطرہ ہوگا تو مدد کریں گے۔ اور یہ چل رہا تھا، لیکن چونکہ بنو قریظہ نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا اور انہوں نے کفار مکہ جو قریش مکہ تھے ان کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ اختیار کیا، تو اس لیے یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف وہ گئے، اور ان کا جو قلعہ تھا اس کا پورا ان نے محاصرہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، اور بدعہدی کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بنو قریظہ کے قلعے کے باہر 1 مہینے تک محاصرہ تھا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ یا تو تم اپنے قلعوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور نہیں تو نیست نابود کر دیں گے قلعوں کو۔ تو آخر کار مجبور ہو کے بنو قریظہ کے یہودی جو تھے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس موقع پر ان کے بیچ یہ فیصلہ ان کے کتاب توریت کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
जो उसमें नौजवान लोग थे उनको कत्ल किया जाए और बाकी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनका माल और असबाब जो था वो मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। ऐसे मौक़ों पर लगभग बताया जाता है कि 1400 लोग कत्ल किए गए और जिनमें एक औरत भी थी जो इस जुर्म में कत्ल की गई थी कि उसने किले की दीवार से एक पत्थर गिराकर एक मुसलमान को हलाक कर दिया था। तो जंग अहजाब और बनी कुरैजा के जंग से हम कुछ अमल के पॉइंट्स लिखते हैं कि आज जंग का दौर नहीं है, मुझे अपनी नफ्स से जंग करना है। जब अल्लाह के हुक्म को मानने में मेरे नफ्स को दबाने के लिए जितने भी तरीके अपनाने होते हैं वह मैं करती हूँ या मुश्किल आने पर मैं पीछे पलट जाती हूँ। मेरा किरदार एक मोमिन का होता है। मैं अल्लाह पर तवक्कल, मुसीबतों पर सब्र और मुश्किलों का डट के मुकाबला करती हूँ और साबित कदम रहती हूँ और अल्लाह की अताअत करती हूँ। इस जंग में मुनाफिकों के कैरेक्टर को भी हमने देखा, उससे हम सबक लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते भी हुए भी उन्होंने अपने रवैये में तब्दीली नहीं की, हालात को देख के वो पलट गए। क्या मैं इस तरह के सिचुएशन आने पर अपने रवैये को तब्दील कर लेती हूँ या उसका मुकाबला करती हूँ? ये पॉइंट्स है जो कि जंग अहजाब से हमने अमल के लिए लिए हैं। आयत नंबर 23। 22 ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस वाक्य ने उनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। ईमान लाने वाले में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा दिखाया है। उनमें से कोई अपनी नजर पूरी कर चुका और कोई वक्त आने का मुंतजिर है। उन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की। यह सब कुछ इसलिए होता ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की सजा दे और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह ने कुफार का मुंह फेर दिया। वह कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया है। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने हमलावरों का साथ दिया, अल्लाह उनकी गढ़ियों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में उसने ऐसा रोब डाल दिया कि आज इनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को कैद कर रहे हो। उसने तुमको इनकी जमीन और उनके घर और उनके अमवाल का वारिस बना दिया और वह इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आयत नंबर 28। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकोकार हैं अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। ये एक वाकया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बीच में कि यह जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस वाक्य को बयान करते हुए कहते हैं कि एक रोज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज आपके चारों तरफ बैठी हुई हैं और आप खामोश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो को खिताब करके फरमाया, यह मेरे गिर्द बैठी हैं जैसा कि तुम देख रहे हो। यह मुझसे खर्च के लिए रुपए मांग रही हैं। इस पर दोनों साहबों ने अपनी अपनी बेटियों को डांटा और उनसे कहा कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करती हो और वह चीज मांगती हो जो आपके पास नहीं है। यह वाकया कहलाता है ईला का वाकया। इसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी खर्चा था पैसे या ये जो भी गल्ला उन लोगों को मिलता था तो उनको लगता था कि उनके ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं थी, बल्कि हमें हदीस के ज़रिए से यह बात भी पता चलती है कि कभी 1 महीने, कभी 2 महीने और कभी 3-3 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के घर में चूल्हा नहीं जलता था। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कहना है कि हम 2 चीज़ों पर
2 काली चीज़ों पर गुज़ारा करते थे, खजूर और पानी पे। तो ऐसे ही हालात थे और वो नान नुस्खे की माँग कर रही थीं। जब उन्होंने उस डाँटा अपनी-अपनी बेटियों को आयशा रज़ी अल्लाह तआला और हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को, तो ये दोनों तो हट गईं, लेकिन बाकी लोग जो माँग कर रही थीं, जो डिमांड उनकी थी, वह जारी रही। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बहुत तकलीफ़ गुज़री और उन्होंने 1 महीने तक अज़वाज मुतहहरा से अपने बीवियों से नहीं मिले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं आप एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के ऊपर ही एक बालाखाना था, जहाँ वह आराम फरमाते थे। और कहीं बताया गया रवायतों में कि उन्होंने 1 महीने तक बीवियों से ना मिलने की कसम खा रखी थी। और यह खबर उड़ गई थी कि नौज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और इसको पता करने के लिए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या ऐसी बात है? तो क्या आप रसूलुल्लाह अपने बीवियों को तलाक दे दी है? उन्होंने फरमाया नहीं। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह खुशखबरी देने के लिए मुसलमानों के पास जाते हैं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोज़ एक-एक दिन गिनती थीं कि आप का 30 दिन कब पूरा होता है। उसी तरह एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बालाखाने से उतरे। बालाखाना कहते हैं घर के ऊपर कोई ऐसा जैसे बालकनी अब के ज़माने में है, उसमें ज़माने में भी कोई छतनुमा चीज़ होती थी जो घर के अंदर ही होती थी। तो उससे उतरे और उतर कर सबसे पहले आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कहना है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने 1 महीने का अहद फरमाया था और आज तो 29 दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना कभी 29 दिन का भी होता है। तो यह वाक़या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बीच में। आज जबकि हमारे शौहर भी ऐसे हालात में कभी-कभी गिरफ्तार हो जाते हैं, जैसे कि बहुत दिनों से क्राइसिस चल रहा है, हम जान रहे हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब है भी तो सैलरी नहीं मिल रही है, परेशानी है कि घर का भी गुज़ारा कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक़्त में बीवियों का क्या रवैया होना चाहिए? एक अच्छी, एक बाशऊर बीवी जो अपने शौहर को ज़हनी तौर पर हमेशा उसको सकून पहुँचाने का काम करना है और उससे ऐसा कोई मुतालबा नहीं करना है, जो कि उस वक़्त उसके पास नहीं हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि अब रमज़ान है, ईद आने वाली है, कहने लगे, "अरे! साल में तो एक ही बार ईद आती है, कैसे नए कपड़े नहीं बनेंगे? कैसे बच्चे बगैर नए कपड़े के रहेंगे? मुझे भी तो एक जोड़ा चाहिए। ईद तो साल में एक ही बार होती है।" इस तरह की डिमांड करके हम फिर अपने शौहर को कर्ज़ लेने पे मजबूर करेंगे। तो ये रवैया एक अच्छी बीवी का बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपने शौहर को हर तरह से ज़हनी सकून पहुँचाना है और अगर हमारे पास ऐसा कुछ है जिसको हम दे के या जिसको बेच के, अक्सर औरतों के पास जेवर होते हैं या कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो कि वो बचा के रखती हैं या फिर मायके से भी कुछ मिले रहते हैं। तो एक नेक सिफ़त बीवी ज़रूर ऐसी हालत में उन चीज़ों के ज़रिए से अपने शौहर की मदद करे। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हों, लेकिन ये हालात आते जाते हैं, ज़िंदगी उतार-चढ़ाव का नाम है और कभी भी किसी के साथ ऐसा होता है। तो इस ईला के वाक़ये से, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ इतनी नेक सीरत थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आला दर्जे के नमूना हैं, रोल मॉडल है हमारे लिए, तो उनकी ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ है, तो इससे सबक लेते हुए हम यही कहेंगे कि हम अपने शौहर को कभी इस तरह के मामले में कभी उनको नाउम्मीद नहीं करेंगे और हमेशा उनको सहूलियत देंगे कि हमारी तरफ से वो बिल्कुल इत्मीनान हो, ज़हनी सकून पे और माली जो भी सकून है उस तरफ से कि हम डिमांड करके उनको तकलीफ ना पहुँचाएँ। उसके बाद से ये मामले के बाद से एक आयत नाज़िल हुई जिसको तख़य्युर की आयत कहा जाता है, जिसमें कि
ये जो आयत है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो सबसे पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की और फरमाया कि ये आयत नाजिल हुई है कि कहो अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखिरत की तलब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकोकार है अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। 28 और 29 नंबर आयत जो है उस तखय्यर और ईला वाले वाक्य की बात है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं और फरमाते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जवाब देने में जल्दी ना करना, अपने वालिदैन से भी इसके बारे में राय ले लेना, फिर फैसला करना। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म आया है और यह आयत उनको सुना दी। उन्होंने अर्ज किया, क्या इस मामले को मैं अपने वालिदैन से पूछूं? मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल और मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को चाहती हूँ। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी बीवियों से भी पूछा और उन्होंने भी यही जवाब दिया। तखय्यर के मामले से भी हम लेसन लेते चले, अभी जब की बात हुई है लेकिन फिर भी पॉइंट आउट करने के लिए कि जब कभी मेरे शौहर की माली हालत कमजोर हो तो मुझे अपने शौहर का साथ देना है। यानी ये डूज के पॉइंट्स में से होंगे और डोंट्स के पॉइंट्स में से ऐसे होंगे कि ऐसे हालात में मुझे अपने शौहर के से दुनिया की चीजों की मुतालबा नहीं करना है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 30। नबी की बीवियों, तुम में से जो किसी सरीह फहश हरकत का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा आजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए यह बहुत आसान काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का दर्जा भी बहुत मुकाम भी बहुत ऊंचा था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा थी। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दोहरा अजर देंगे, इनाम भी दोहरा, और हमने उसके लिए रिज्क करीम मुहैया कर रखा है। नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात ना किया करो। यहाँ अब बात करने के आदाब सिखाए जा रहे हैं। सोसाइटी में एक गैर मुहर्रम मर्द और औरत का अगर किसी वजह से जरूरत से बात करना हो तो किस तरह की बात करे, कि उसके जबान जो हो बिल्कुल आगे की जो आयत है कि बात न किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ और सीधी बात किया करो। बात करने का अंदाज ऐसा हो कि जरूरत पेश आने पे जो अंदाज है उसका लहजा ऐसा हो कि बिल्कुल साफ सुथरा हो, और उससे जिससे बात करने वाले मर्द के दिल में कभी यह ख्याल ना गुजरे कि उसकी औरत से कोई तवक्को की जा सकती है। बात में लोच ना हो, बात में कोई लगावट ना हो, उस और आवाज में कोई ऐसी मिठास ना घुली हो कि जिससे कि जो मर्द है उसके दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा हो कि यह माइल होने वाली ख्वाहिश इस तरह की माइल हो उस औरत की तरफ से। तो बात करने का जो अंदाज है, जो जबान का अंदाज है एक गैर महरम से, यह इस आयत में बताया जा रहा है। इस आयत से भी हम अपने लिए अमल के पॉइंट्स ये निकालेंगे कि मेरी गुफ्तगू के अंदाज गैर मुहर्रम से कैसी है। ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें लोच ना हो, लगावट ना हो और दिलफेक अंदाज ना हो। और करना क्या है, जरूरत के मुताबिक बात करनी है, साफ सुथरी बात, बस उतना ही जितना कि सवाल हो। फोन पर भी फोन कॉल्स आते हैं तो बात बिल्कुल सीधी हो, अब ऐसे बिल्कुल नहीं हो कि बहुत ज्यादा मिठास वाली जबान में बात करें। जो बात पूछे उतना कह के माजरत करके फोन रख देना चाहिए, कोई गैर महरम बात कर रहा हो। आयत नंबर 33। अपने घरों में टिक कर रहो। ये सारी बातें क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से हो रहा, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं और एक मुसलमान औरत के किरदार को यहाँ पे उभारा जा रहा है कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए।
अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जाहिलियत किसी सज धज न दिखाती फिरो। इसके बारे में अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि औरत ने कहा, औरतों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जब हमारे शौहर जिहाद करने जाते हैं तो उनको तो बहुत अजर मिलता है, लेकिन हमें क्या अजर मिलेगा तो घर बैठने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से घर बैठेगी वह मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। मतलब यह हुआ कि जो जिहाद करने जाएंगे उस वक्त तो खुदा की राह में वह उसी वक्त सुकून से लड़ सकते हैं जब अपने घर की तरफ से पूरा इत्मीनान हो, अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने घर में, तभी वह बिल्कुल सुकून से और इत्मीनान से जिहाद में हिस्सा ले सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद भी बयान करते हैं कि औरत क्या है, मस्तूरा रहने के काबिल है, यानी घर में टिक के रहना। जब वह बाहर निकलती है तो शैतान उसको ताकता रहता है और अल्लाह की रहमत उसे करीब तर उस वक्त होती है जब वह घर में रहती है। हम हमेशा जानते हैं कि औरत का जो दायरे अमल है उसको उसका घर है, लेकिन जरूरत के तहत आज भी औरतें घर से बाहर निकलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि आज के औरतों का बाहर निकलने का सबसे ज्यादा मेन मसला क्या है, जो वो शॉपिंग है, बाजारों में जाना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के जरिए से ये पता चलता है, जिसका मफ़हूम है, मिस्कात अल मिस्बाह की हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जमीन पर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है और सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह बाजार है। तो आज से इस आयत को पढ़ने के बाद बहुत ज़रूरत की वजह से बाज़ारों में जाएँ, या फिर यह ईगो हमें अंदर से उभारता रहता है कि शौहर जाते हैं या बच्चे जाते हैं तो सही सामान नहीं लाते हैं, मैं जाऊँगी तो अच्छा सामान खरीद के लाऊँगी। ये नहीं होना चाहिए, जबकि अल्लाह ताला की नापसंदीदा जगह बाज़ार है। वक़्त ज़रूरत के तहत जाएँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने घरों में ही रहें। और यहाँ एक वर्ड है तबर्रुज़। तबर्रुज़ का यहाँ पे दिया गया है, जो कि डेफिनेशन है इसका, आप लोग हाइलाइट कर लीजिए कि दौरे जाहिलियत की सज धज न दिखाती फिरो। तबर्रुज जो वर्ड है उसके माने हैं कि अपने आप को नुमाया करना, एक्सपोज करना, उभारना और खुलकर सामने आना। इसके 3 मतलब होते हैं। एक यह कि वो अपने चेहरे और जिस्म का हुस्न लोगों को दिखाए, और दूसरे की लिबास और जेवरों की शान दूसरों के सामने नुमाया करे। तीसरे यह कि अपनी चाल डाल और चटक मटक से अपने आप को नुमाया करे। तबर्रुज के मानी में नाज और नखरे के साथ लचक खाते हुए इठला के चलना, अपना हार और बूंदा और अपने गले को नुमाया करना, और अब औरत जो है अपने जो हुस्न को जाहिर करे, जिसको छुपाना चाहिए, तो यह तबर्रुज में आता है। औरत अपने जिस्म और लिबास के हुस्न को नुमाया करे, जिससे मर्दों की रुग़बत उस तरफ हो, तो इसी को तबर्रुज कहा गया है। तो ये जाहिलियत के दौर थे, लेकिन आज के मॉडर्न जो एरा है उसमें अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो अपने शरीयत के हिसाब से कपड़े पहन के निकलता है, ढीले ढाले कपड़े या चादर में लिपटे हुए दुपट्टा बड़ा मोटा, तो उसको लोग आज जाहिल कहते हैं। तो अपने लिए इस तबर्रुज से ये पॉइंट निकालना है कि मैं जब निकलूं बाहर तो मेरा लिबास कैसा हो, मेरा लिबास बिल्कुल टाइट नहीं हो, मेरी चाल नाज नखरे वाली ना हो, बालों का जो ऊंचा जोड़ा बनाया जाता है उस तरह के जूड़े ना बनाए जाएं, और बजने वाले जेवर ना पहने जाएं जब बाहर निकले। तो खुशबू ऐसी ना लगाई जाए जो दूसरों को अपनी तरफ मायल करे, और ऐसा कोई भी चीज जो कि दूर से नजर आ जाए, इस तरह का कुछ अपने जिस्म के साथ करके बाहर नहीं निकलना है। नमाज कायम करो,
ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह तो यह चाहता है कि तुम अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक रख दे। याद रखो अल्लाह की आयत और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं। बेशक अल्लाह लतीफ और बाखबर है। आयत नंबर 35 में ईमान लाने वाले मर्द और औरतों के 10 कैरेक्टर बयान किए जाते हैं। बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मती फरमान हैं, रास्तबाज हैं और साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए मगफरत और बड़ा अज्र मुहैया कर रखा है। हमने सूरह मोमिनीन में भी एक मोमिन का किरदार पढ़ा था। सूरह फुरकान में भी हमने इबादुर रहमान की क्वालिटीज पढ़ी और यहाँ भी हम 10 क्वालिटीज पढ़ रहे हैं जो कि एक मोमिन मर्द या औरत के होते हैं। हमें इन सारी क्वालिटीज को लिस्ट आउट करना है और हमको यह देखना है कि कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर है और कौन सी नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम अपने आप को इन क्वालिटियों को इन किरदार में ढालने की कोशिश करेंगे जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाए। ये एक आयत बड़ी ही प्यारी आयत है, इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए और इसकी अरबी को भी पढ़ें। आयत नंबर 36। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने मामले में खुद फैसला करने का अख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वह सरीह गुमराही में पड़ गया। यह उस बात की तरफ इशारा है जो जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शादी का था कि वो जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शादी नहीं करनी चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उन्होंने शादी किया कि जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई फैसला हमारे सामने आ जाए तो हमारे लिए यही जरूरी है कि हम उस फैसले को माने, न कि अपने नफ्स की ख्वाहिश को माने। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो वह मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को न छोड़ो और अल्लाह से डरो। उस वक्त तुम अपने दिल में वह बात छिपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था और तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही वही के जरिए से यह बात बता दी गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होना है, और ये इसीलिए आप लेकिन आप उस वक्त के माशरे से के मुताबिक आपके दिल में एक डर था कि लोग क्या कहेंगे कि मुंह बोले बेटे की बहू से शादी कर लिया, तो इस वजह से वो डर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उस चीज को अपने दिल में छुपाए थे कि मैंने वही कर दी है और तुम्हारा निकाह होने वाला है, और तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। हम सब के लिए एक तंबीह है कि अल्लाह से ही डरना चाहिए, लोगों का ख्याल नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। फिर जब जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतलका खातून का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी न रहे, जबकि वह उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हैं। जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम ही एक सहाबी का अकेला नाम है जो कि कुरान में आया है। जब उन्होंने तलाक दी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने खुद ही आसमानों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कर दिया और उस रस्म का खात्मा कर दिया जो कि वो जाहिलियत के जमाने में यह थी कि एक एडॉप्टेशन का मामला जो था कि उसके बेटे की बहू से बीवी से कोई शादी नहीं कर सकता है, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया के मामले में रही है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फैसला होता है। यह अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं
اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی اللہ حساب لینے والا ہے اور وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ وہ جاہلیت کی رسم ختم ہو گئی کہ کوئی گود لے سکتا ہے بچوں کو، اور اسی لیے بتایا جا رہا کہ زید بن حارث جو تھے ان کے باپ حارث کے نام سے ہی پکارا جائے، نہیں کہ زید بن محمد سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا عزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو وہ جو تہم ورڈ ہے وہ سلام کا ہی ہے کہ وہ لوگ سلام کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے جو چیز اللہ کے طرف سے حکم نہیں ماننے والوں کے لیے آئی ہیں، اور ان چیزوں کی خوشخبری دینے والا جو اللہ کا حکم مانے گا اس کو کیا انعام ملنے والا ہے، اور ایک روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے، اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اللہ کی طرف سے بڑا ایمان لانا، یعنی ان کو دل سے تصدیق کرنا، ان کے جو عمل جو تعلیمات ہیں ان کو جاننا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے ہر معاملے کو رکھ دینا ہے جب ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ ایک طلاق کی ہی کا مسئلہ بتایا گیا ہے، جبکہ نکاح کرنے کے بعد سے آپس میں میاں بیوی ملے نہیں ہوں۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھلے طریقے سے کچھ مال دے کے رخصت کرو، یعنی جو مہر ہے اس کو ادا کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی ادا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چاچا جاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ جاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اسپیشل کنڈیشن جو ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبہ کیا، یہ بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حبہ کرنا ہوتا ہے کہ پیش کرنا یا کوئی چیز کسی کو دینا، تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے پیش کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو یہی وہ بات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو حبہ کیا ہو۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ ایک خاص ان کے لیے اسپیشل کنڈیشن دی گئی ہے
اللہ ताला की तरफ से आम मोमिनों के मुकाबले में। अल्लाह गफूरुर रहीम है। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामला में तुम पर कोई मजायका नहीं है। इस तरह ज्यादा मतवक्को है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वह रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम उनको दे दोगे उस पर वह सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह हकीम व अलीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया जा रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी बीवियों के साथ बराबरी का हिस्सा रखा और उनकी बारी मुकर्रर थी। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं है, और न इसकी इजाजत है कि उनकी जगह और बीबियां ले आओ, खा उनका हुस्न तुम्हें कितना भी पसंद हो। ये ऊपर जो आयत गुजर चुकी है उसको बताने के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया जा रहा है कि और दूसरी औरतें आपके लिए हलाल नहीं है। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आयत नंबर 53 से आयत हिजाब शुरू हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाजत न चले आया करो। हमने सूरह नूर में पढ़ा कि घर में दाखिल होने के इजाजत लेनी पड़ती है, और किस तरह से इजाजत ली जाए उसके बारे में भी हम पढ़ाए हैं। क्योंकि सूरह अहज़ाब सूरह नूर के पहले नाजिल हुई थी, इसलिए ये बात बताया जा रहा है कि जो लोग नबी के घरों में जाएं वह बिला इजाजत न चले जाया करें, न खाने का वक्त ताकें। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आए, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, बातें करने में न लगे रहो। कोई भी करीबी दोस्त हो या दूर का ही रिश्तेदार हो, बिला इजाजत घरों में दाखिल ना हो। इजाजत लेके ही घर में दाखिल होना चाहिए। या घर में दाखिल होने के आदाब, ये जो आदाब हैं बताए गए हैं। और जब घर पे खाने का वक्त हो तो उस वक्त में जाके बैठे रहने से भी मना किया गया है कि अगर जो जिसके घर हम जाते हैं उसके घर की कैफियत क्या है, उसको इतने लोगों का खाना खाने और बनाने और खिलाने की उस वक्त उसकी ताकत है या नहीं है। अगर अचानक कोई इतने लोग चल जाएं या अकेले ही चले जाएं, तो जब तक किसी को बुलाया नहीं जाए जब तक खाना खाने के लिए नहीं जाना है। जैसा कि हमारे माशरे में ये बहुत अच्छी तरह से इस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यह उस वक्त की बात है जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, और वलीमे की दावत थी, और लोग खाना खाने के बाद भी बैठे रह गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ गुजर रही थी। तो इस वाक़ये को अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रात के वक्त वलीमे की दावत थी। आम लोग तो खाने से फारिग होकर रुखसत हो गए, मगर 2-3 लोग बैठे रह गए और आपस में बातें करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल गए, फिर आए, जब तक वो बैठे थे फिर गए, तो वो आए, फिर वापस तो ये आयत नाजिल हुई और उन्होंने उनको सुनाया, और शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तुम्हारी ये हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती हैं, मगर वह शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते हैं, और अल्लाह हक बात को कहने में नहीं शर्माता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। एक गैर महरम शख्स को कोई चीज मांगने की जरूरत पेश आ जाए तो पर्दे के पीछे से मांगे, जब कोई घर में नहीं हो, और औरत ही घर में हो तो उसके लिए ये कंडीशन तय कर दी गई है कि पर्दे से के पीछे से मांगना है। यह तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका है। तुम्हारे लिए यह हरगिज जायज नहीं कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और न यह जायज है कि उनके बाद उनकी बीवियों से निकाह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उम्मत की माएँ हैं, इसलिए उनसे निकाह करना बिल्कुल मना कर दिया गया है। यह अल्लाह के नजदीक बड़ा गुनाह है। तुम खा कोई बात जाहिर करो या छिपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। अज़वाजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसमें कोई मज़ायका नहीं है। उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके मेल जोल की औरतें और उनके ममलूक घरों में आए। ये सारे महरम रिश्ते बताए जा रहे हैं कि जो घर में आ सकते हैं। तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करना चाहिए। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। अल्लाह और उसके मलाइका
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। एक हदीस का मफहूम है, आयत नंबर जो 58 है कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा और 10 गुनाह माफ कर देगा और 10 दर्जात बुलंद कर देगा। सुबहान अल्लाह। और दरूद नहीं भेजने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के बाद भी उन पर दरूद नहीं भेजने से उस शख्स पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमाई है और उन लोगों के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है और कर दिया है। और जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं, उन्होंने एक बड़े बुहतान और सरीह गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों को के पल्लू लटका लिया करें। यह जो जलबाब की जो वर्ड है, जलाबी बिहिन्ना जो है, इसका मेन वर्ड है जलाबीब। तो इसको आप लोग हाईलाइट करें। इसका मतलब होता है कि इसमें बाहर निकले के अहकाम बताए जा रहे हैं। जब सूरह नूर हम पढ़े थे तो उसमें घर के अंदर पर्दे के अहकाम थे और सूरह अहजाब में बाहर निकलने के पर्दे के अहकाम बताए जा रहे हैं। तो जब एक मुस्लिम औरत बाहर निकले तो उसका हुलिया कैसा होना चाहिए, उसके लिबास कैसे होना चाहिए। तो जो जलाबीब जो है, इसके जो तशरीह की थी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने, तो उन्होंने एक चादर को अपने सर पर से लटका के चेहरे को ढांक लिया था और एक दाहिने आंख को ढक के सिर्फ बाई आंख दिखने के लिए खुला रखा था। आज का जो उसका बदली हुई शक्ल है उसकी, वो आज अबाया और स्कार्फ और हिजाब की शक्ल में हमारे पास है, जो 3 हिस्सों में बट गई है और आंखें का जो है, आंखों के पास का वो खुला रहता है। तो ये उसी की शक्ल है। अब एक मुस्लिम औरत जब बाहर निकलती है तो उसका जो हुलिया है, ऐसा भी नकाब या अबाया नहीं हो कि बहुत ज्यादा टाइट हो। अक्सर देखा जाता है कि नकाब तो पहनती हैं, लेकिन वही वाली हदीस ये आती है कि कपड़े पहन कर भी वो नंगी रहती हैं। इतना टाइट नकाब होता है कि उनके जिस्म के पूरे उतार चढ़ाव नजर आते हैं और औरत का चेहरा और औरत का जो सीना, 2 चीजें हैं जो कि अट्रैक्शन के हिस्से हैं और एक मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से ढांपना है। और हमने सूरह नूर में जना के करीब नहीं फटको ये पढ़ा था और उस चीज को दावत देने वाली चीजों को, जिन जिन चीजों से रोकना है, वो सारे यहाँ वहां भी बताए गए, सूरह नूर में भी, और यहाँ भी बताए जा रहे हैं कि एक मुस्लिम औरत जब बाहर निकलती है, जब उसका लिबास बिल्कुल ढीला ढाला हो और बिल्कुल बारीक ना हो और उसका बहुत चमकदार और अबाया जो बहुत ज्यादा कसीदाकारी वाला चमकीली चीजों से आरास्ता ना हो कि जिस पर किसी की निगाह टिक जाए, और चादरों को लटका लिया कर, यानी हिजाब कर लिया करो। अपनी बीवियों और बेटियों सबसे कहा जा रहा, आज के माशरे में जो आ, हम कपड़े जो पहनते हैं, उसको अपनी बेटियों को एक बचपन से ही पहनने की आदत डालनी है, क्योंकि शैतान शिर्क के बाद बेहयाई पर ही सबसे ज्यादा उकसाता है। और जो कपड़े बाजार में आजकल छोटे बच्चों के भी बिकने लगे हैं, वो हम देखते हैं कि बस आधे होते हैं, जो कि बस एक फीता होता है गले का और आधा जिस्म ढका रहता है। तो इस तरह के कपड़े एक मुस्लिम बच्ची को शुरू से ना पहनाया जाए कि उसका बदन ढके और उसको ढकने की आदत रहे। अब बड़े हो जाने के बाद अगर हम सोचते हैं कि हमारी बेटी पर्दा करे और वो पर्दा करके निकले, तो इस तरह की आदतें अगर बचपन से डालेंगे तभी वो कर पाएगी। छोटे बच्चे दुपट्टे लेके खेलते हैं तो उनके दुपट्टों को कभी न छीने। कि हमारी टीचर कहा करती थी कि अगर आज तुमने दुपट्टा छीन लिया बच्चियों से तो फिर कल उनके सरों पर तुम दुपट्टा नहीं रखवा सकती हो। तो पर्दे के तो बहुत बड़े ही ये है इसके बारे में, लेकिन हम क्योंकि सूरह नूर में भी कुछ पढ़े हैं और कुछ यहाँ हमने पढ़ा है, तो बन सवर के निकलना या इस तरह से कि अपने लिबास को ऐसा
हो कि उसको पहने हुए भी हम नहीं पहने हुए, हमारे साख्त नजर आ रही हो, तो इस तरह के लिबास पहन के हम घरों से बाहर न निकलें। यह ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वह पहचान ली जाए और सताई नहीं जाए। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। एक मुस्लिम औरत की पहचान बताई जा रही है कि उसका हाल हुलिया, उसका लिबास, सब कुछ एक आम औरत से अलग हो। आज जबकि इस्लाम के दुश्मन जो हैं, औरत से उसका यह एक प्रोटेक्शन है, जो लिबास है हमारा बाहर निकलने का, वह एक प्रोटेक्शन है, एक शील्ड है, जो कि जिससे हम अपने को कवर करके निकलते हैं। आज जब जो दुश्मन है इस्लाम के, वो सोचते हैं कि इसको, इस प्रोटेक्शन को हम औरत से छीन ले, और उसके वह इसलिए ऐसा करते हैं कि इस्लाम की हकीकी रूह को समझते नहीं है। हिजाब के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, पर्दा करने वालों पर उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है कि एक मुसलमान औरत पर पर्दा करा के जुल्म किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ समझा जा रहा है। वह सब लोग इसलिए चाहते हैं ताकि उनकी अपनी औरतें महफूज रहें। एक मुसलमान औरत बेशक पिंजड़े में रह के, बेशक नकाब के अंदर रह के उन भूखे भेड़ियों से हिफाजत पा सकती है, जो चारों तरफ माशरे में बिखरे हुए हैं, जो उससे निकलने को तैयार हैं, जो एक डायनासोर के रूप में उसको काट खाने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि यही हक है। ये एक मुस्लिम औरत, जो कि एक सरमाया है उम्मत की, वो अगर अपने उसी शरीयत के कानून को फॉलो करे, तो उसके गोदों में पलने वाली नस्ल भी इंशाअल्लाह जरूर एक दिन उरूज पर होगी, और इस्लाम भी उरूज पर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुनाफिकीन और वह लोग जिनके दिलों में खराबी है, और वह जो मदीना में हैजान अंगेज अफवाहें फैलाने वाले हैं, अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे, फिर वह उस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। इन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहाँ कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। यह अल्लाह की सुन्नत है, जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली न पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं क़यामत की घड़ी कब आएगी, कहो उसका इल्म तो अल्लाह ही को है। तुम्हें क्या खबर, शायद कि वह करीब ही आ लगी हो। बहरहाल ये यकीनी अम्र है कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है, और उनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर दी है, जिसमें वह हमेशा रहेंगे, कोई हामी व मददगार न पा सकेंगे। जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे, उस वक्त वह कहेंगे, बिल्कुल जैसे हम कबाब सेकते हैं, उस तरह से जहन्नम में लोगों के चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। काश हमने अल्लाह और रसूल की अताअत की होती। और कहेंगे, ऐ रब हमारे, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की अताअत की, और उन्होंने हमें राह रास्त से बेराह कर दिया। ऐ रब उनको दोहरा अजाब दे और उन पर सख्त लानत कर। इसको फॉलो करते थे, अब उनके लिए ही वो दोहरा अजाब तलब कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह न बन जाओ जिन्होंने मूसा को अजियतें दी थी, फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बरात फरमाई, और वह अल्लाह के नजदीक बाइज्जत था। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त करेगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करे, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया, तो वह उसे उठाने के लिए तैयार न हुए और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वह बड़ा जालिम और जाहिल है। कौन सी अमानत? दुनिया में जो अमानत है, जो कि कुरान मजीद की तरफ से अल्लाह ताला ने पेश किया, उस अमानत की बात हो रही है कि अल्लाह ताला इस अमानत को उठाने को तैयार हो गया, लेकिन इसको मानता भी नहीं है। इस बार को उठाने का लाजमी नतीजा यह है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे, और मोमिन और मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। इस आयत के साथ हमारी यह सूरह खत्म होती है। करने के काम थोड़े से अपना लिखते चलें कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए इस सूरह में बताया गया कि एक नमूना है। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना है, उनको की सुन्नतों को पढ़कर उस पर अमल करना है। मैं मुसलमान हूँ, दूसरे मजहब की शरीयत के बीच, जो अहजाब खंदक, जो जो खंदक है, जंगे खंदक, जो गजवे खंदक और गजवे अहजाब एक ही
जंग का नाम है। तो मैं मुसलमान हूँ, दूसरे मजहब की शरीयत के बीच मुझे एक खंदक महसूस करना है ताकि कोई इस्लाम पर अटैक ना कर सके। मुझे सूरह अहज़ाब में बताए हुए औरत के किरदार को अपने अंदर ढालना है। मुझे एक बेहतरीन मुस्लिम औरत का किरदार अपने आप को पेश करना है। इला के वाक्य से मुझे यह लेसन लेना है कि अपने शौहर की हर हाल में उनको दिलजोई करनी है और उनसे वह मुतालबा नहीं करना है जो उनके बस में नहीं है। आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।